All right. So, well, this example is just, nullify the common perception that integral or integration is anti-derivative process. It is not theoretically. It can be uh, in- while using tricks or while solving, but it is not. And this example simply, highlight that this at this point function is not continuous, hence it is not anti. It's not, its derivative does not exist, but the integration using the Riemannian sum is possible. These are simple geometries and two simple rectangles. Their sum will just give you the integration, the Riemannian integration or Riemannian sum or area. So next is uh, formalize this. Formalize this to this to kill this common perception that it is antiderivative. So there is a theorem, and this theorem is called fundamental theorem of calculus. So it's fundamental the theorem of calculus. So पहले आपने एक दो theorems की हैं, वो mean value roles theorem, वो differentiation करते हैं, and this was fundamental theorem of calculus. It involves integration. So read out the hypothesis of the given things. Let function एक आपका given है, defined on this interval. Defined on this interval means ये उसका domain है और उसकी range complete real line हो सकती है. ठीक है, is a continuous function. Then एक और function है from this interval to R, and we name this function as a. Now f function and f function, these are related to each other by this means. Now a is called a function, it symbolizes, let's say, area. So it's area between a and x of this function f of u du is the integration, remember, from a to x, right? And x is in between a to b. Possibly maximum can be b, कम से कम वो a हो सकती है. अगर a होगी तो this will be 0 and this function will be 0. अच्छा, थ्योरम ये कहता है कि दो फंक्शंस हैं, they are related to, a आपका इस तरह डिफाइंड है. Now a is differentiable for every value of a, and उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी a की, वो इस f के इक्वल होगी. इसको देख के आपको अगेन ये लगता होगा कि इंटीग्रेशन इज सिंपली एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस. इसको देख के कि आप अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ए टू एक्स एफ ऑफ यू को कर रहे हैं. ठीक है, यू, सो दिस यू इज इम्पॉर्टेंट टू नोट. ठीक है, सो वी यूज यू नॉट टू कंफ्यूज इट एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, और एक्स आपका ए और बी के इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है, देन इट इज इक्वल टू एनी फंक्शन ए, देन इट इज कॉल्ड, और इसका डेरिवेटिव है इसके. सो वेल, थ्योरेटिकल इसका जो प्रूफ है, वेयर इज एलएमएस, ये आपके लिए असाइनमेंट होगी. इसके the question page, proof of theorem. Upload proof of fundamental theorem of calculus. Okay, so इस थ्योरम के कॉन्सिक्वेंस में एक इस तरह का रिजल्ट है कोरोलरी का, के
No, this is, I mean, not the right time to discuss. I just stopped sharing a screen because this is going to be irrelevant at the wrong time. And can you give me 5 minutes? जी सर। Okay, so back to the slide again. Do you see the screen? Yes sir. Can someone put effort to explain this theorem? No? Hmm, I should do it. Okay, so okay. Now fundamental. Oh my goodness. Fundamental theorem of calculus. ठीक है. Let if आपका function है from this interval to R be a continuous function and a function है from same interval to
और ए कुछ इस तरह गिवन है कि फ्रॉम ए टू एक्स, जब आप एक्स का एरिया यू का एरिया फाइंड करते हैं, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी मतलब वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, विच आई वांट टू मेक यू रियलाइज के एक एफ फंक्शन है, ए डिफाइन इस तरह है कि हम इसको ए कहते हैं, ठीक है। नाउ ए इज डिफरेंशिएबल अगर एफ कंटिन्यूअस होगा तो ए डिफरेंशिएबल है differentiable ऑन कंप्लीट इंटरवल, ठीक है। तो उस वक्त ये ए डिफरेंशिएबल होगा, मतलब आपने ये जो इंटीग्रेशन अगर किसी तरीके से आपने ये एरिया फाइंड कर लिया है, उसको ए कह दिया है, ठीक है ना। तो लेट मी रीराइट इन अदर वर्ड्स में भी, ये आपके लिए शायद आसान हो। लेट एफ बी अ continuous function and continuous function defined on this interval. Okay, so okay, and is f of u को with respect to u differentiate करते हैं and we call it area, ठीक है। Then a of x will be differentiable, आपका इससे मतलब कम सरोकार होगा या कम कंसर्न होगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, एंड इससे ज्यादा सरोकार होगा कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसकी डिफरेंशिएशन आपकी ओरिजिनल पुराने फंक्शन के इक्वल होगी। नाउ दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये अगर f कंटीन्यूअस फंक्शन है, उसका आप एरिया फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम a टू x, ठीक है। x कोई भी पॉइंट इन बिटवीन a टू b चूज कर सकते हैं, तो इसका जो एरिया होगा ये जनरली इसके इक्वल होगा, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन is differentiable and its differentiation is equal to original function, ठीक है। ये आप फंडामेंटल थ्योरम आप कर रहे हैं। आई होप इट इज easier now. Can I get some feedback? Yes, sir, it's better. Let me make it more maybe simple. So एक इसका this one is okay. So हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंटीग्रल है मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम a to x f of u du. Now this is basically if this is f of let's say u, तो ये this is from point A and this is end point B, ठीक है। तो ये तो आपका सर्टेन है, एक लिमिट आपकी तय है कि x, दूसरा लिमिट हमने अभी तय नहीं किया। x कैन बी एनी पॉइंट, मे बी हियर, r मे बी हियर, r मे बी हियर। इफ दिस इज द पॉइंट, तो ये जो एरिया होगा ax, ठीक है, और उस वक्त x की ये खास वैल्यू होगी विल बी इक्वल टू दिस फंक्शन। तो ये एरिया चेंज होता चेंज हो रहा है ना, ठीक है। मतलब x जो वैल्यूज आप डिफरेंट लेते रहेंगे, फ्रॉम a से लेके b तक कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपकी वो डिफरेंट वैल्यूज वो इस फंक्शन के थ्रू आती हैं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आता है वो ये एक ऐसा फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। मतलब एरिया आपका x पे अभी डिपेंड कर रहा है।
यहाँ पर ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, तीसरी चॉइस x की, चौथी चॉइस। तो now theorem says that if f is continuous, this a will be differentiable and its differentiation will be equal to this original function f. Now this is fundamental theorem of calculus. ठीक है, ये यहाँ पर यही सेम चीज है, a prime is equal to f of x. Okay, now इसकी corollary है, ठीक है, corollary ये होती है जो corollary is like consequence of the theorem, consequence of theorem या किसी रिजल्ट की मतलब consequence में हम जो चीज लिखते हैं, ठीक है, वो इस तरह है कुछ। अब देखिएगा, f is a continuous function. अब ये a, this is just I mean read f as a आपका कोई भी फंक्शन है such that for all, ये उसकी डिफरेंशिएशन, मतलब f ऐसा फंक्शन है, ये चीज अगर यहाँ तक गिवन है, इट मींस कि इट सेटिस्फाइज योर फर्स्ट थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कि उसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है, तो देन ये जो लिमिट होगा a to b f of u du, this will be equal to कैपिटल F of b माइनस कैपिटल F of a, और कैपिटल F आप इसको जब डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास f of x होता है। तो यहाँ से एक जो वेक मिसकंसेप्शन टाइप ऑफ चीज निकलती है कि f of x is इंटीग्रेशन ऑफ f of x, ठीक है, r, या जो f of x is derivative of x. Now this is correct but this is not, ठीक है, ये तो आपको गिवन है ना चीज यहाँ पर, बट ये सही नहीं है। f of x का जो मतलब ये उसका इंटेग्रल नहीं है सिंपली, ठीक है, इंटेग्रल डेफिनेट उसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है, या अगर मतलब एक पार्ट काउंटर एग्जांपल आपने पहले देखा था कि वो डिफरेंशिएशन में अगर डिस्क्रीट पॉइंट आ जाए तो उस पर नहीं होता है। वेल, now this corollary basically gives you a path or a trick that how can you find this integration, how can you perform this integration process or the Riemannian process. तो ये जो आपकी notation थी, ये this one, ठीक है, this notation was equal to the Riemannian sum of all those rectangles, and now this is simply equal to this one, f of b minus f of a. ये a और b आपके लिमिट्स हैं, और f कौन सा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इस f के इक्वल हो, स्मॉल f के इक्वल हो। तो ये f ऑब्टेन करने के लिए आपने मतलब यहाँ ऐसी चीज रखनी है उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो वापस आपको f मिल जाए। तो मतलब डिफरेंशिएशन का कोई उल्टा प्रोसेस चलाएंगे, उसकी उल्टी ट्रिक करेंगे। तो दिस इज व्हाट द कंफ्यूजिंग थिंग which is being used here. तो कैपिटल F आपको चाहिए, आप मतलब ऐसी चीज लेके आते हैं जिसको डिफरेंशिएट करें तो आपको वापस ये जाए। तो मतलब इस चीज को हम डिफरेंशिएशन का कोई उलट प्रोसेस अगर हो सकता है तो, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का उलट प्रोसेस इन जनरल देखें नहीं हो सकता। एक पॉलिनोमियल्स के लिए रूल है कि डिफरेंशिएशन उनकी की जाती है, पावर एक रिड्यूस करके डिफरेंशिएशन करते हैं, और इंटीग्रेशन में पावर ऐड। इसी तरह एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जो है वो सेम, जो डिफरेंशिएशन है वो भी साइन एक्स कॉस एक्स रिवर्सिबल है। लेकिन अगर बहुत कोई कॉम्प्लेक्स और मिक्सचर किस्म का फंक्शन है तो देन मतलब yeah, just believe ke it's not perfectly perfect to say ke it's anti-derivative in some context, and in some in in some aspects it is anti-process, but it is not like that. Okay, so ये यहाँ से हमें चीज मिलती है कि how do we solve this sort of problem or this kind of problem, ठीक है। तो इनका डेरिवेटिव और ऐसे, ठीक है।
नाउ इसको अगर मैं एग्जांपल उसमें मैं लिखूं तो let's save this for you. Yes, and then format background. Clear canvas. Okay, so the example is like f is a function from, so f of x, this is function x square, ठीक है, और a let's say आपका है 2, no sorry 1, and b is 2. So question is f of x a to b dx x square 1 to 2 dx. अब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व? आप सिंपली क्या कर रहे होते हैं, x cube divided by 3, okay, but using fundamental theorem of calculus, हमें, this is f, this is equal to f of 2 minus f of 1, where okay, so where f prime of x is equal to f of x. तो हमें ऐसा कैपिटल f चाहिए, अगर उसका हम डेरिवेटिव लें तो ये चीज वापस आ जाए, ठीक है। तो से f will be like x cube divided by 3, ठीक है। so x cube divided by 3, x is equal to 2 minus x cube divided by 3 is equal to 2 minus x cube divided by 3, x is equal to 1. ये आपकी चीज होगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें आप, यू विल गेट द वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करें आप, 2 power cube divided by 3 minus 1 power cube divided by 3, and the answer is 7 minus divided by 3, ठीक है। Are you there? Yes, sir. इसको मैं इसमें छोटी सी आपको क्लास असाइनमेंट दे सकता हूँ, वो कुछ इस तरह के, नाउ दिस इज अपरेंटली equal to maybe below. So now how to say, so 1 to 2 x square dx, आपने summation I is equal to 1 to n and limit n approaches to infinity, एरिया क्या होगा इस डेल्टा x times f of xi. So question, wait. Do it for n is equal to 2, n is equal to 3, and
and then और किसके ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक, ओके। सो ये आपने इन दो के लिए करना है एरिया और कंपेयर करना है इस रिजल्ट के साथ। एंड एक और चीज मैं सोच रहा हूँ कि अब बस ये ठीक है, अब इस दोनों के लिए आप कर लें, ठीक है, कर लेंगे अभी क्लास में। मे बी एक और वैल्यू 4। तो ये जो इस तरफ समेशन है राइट हैंड साइड पर, इसमें आपने 2, 3 और 4 रेक्टेंगल्स और उनका आपने वो करना है। आर यू देयर क्लास में आप? Yes, sir. Arup, Okay, sir. Sir, Arup का I got a message saying she's having internet issues and उसको आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब I don't know अभी आ रही है कि नहीं। But she is Arup is she, right? Okay, I Yeah, do not it know is who she. is he. Okay. तो चलें, कोई मसला नहीं, खैर ठीक है। Meet right now, but आप इसको जो अभी असाइनमेंट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको क्लास में अभी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग इसकी यहीं रोक देता हूँ एंड विल शेयर पीसेस विथ यू।